You can also type in your questions. Somebody says, I have uncontrolled BP. Does it reverse BP permanently? Okay. Is it permanent? So that is the first question. Okay, when one sec. Please go ahead. How long does the effect last? So how long your body was designed not to create blood pressure? 100 years back, how many people used to have blood pressure? 100 साल पहले कितने लोगों को ब्लड प्रेशर था? लाखों सालों से, for lakhs of years, or millions of years, this body never created blood pressure. Why you are getting blood pressure? आपको क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए? So is your body designed for not getting into blood pressure? Yes, your body is designed for that. Why you are getting blood pressure? Blood pressure क्यों हो रहा है? Reason क्या है? Do you find reason before taking a pill? आपको रीजन पता चलता है क्या? So you would say कि नहीं, डॉक्टर ने बोला तो हमने ले लिया. तो आपने पूछा क्यों नहीं? But do you know, nobody knows why you are getting blood pressure. In allopathy at least. I'm not talking about Ayurveda, because Ayurveda again is a vast science, much bigger than allopathy. उसको समझने के लिए और भी समझदार लोग चाहिए. So आपको तो पता ही नहीं कि blood pressure क्यों हो रहा है. Then how can you come out of blood pressure permanently by taking a pill? So even if you get into constipation, do you think your blood pressure rises? Constipation भी हो जाएगा तो भी blood pressure आपका बढ़ जाता है. आपको मालूम नहीं है? Try to measure it. 2 दिन का constipation देखिए shoot up करेगा above the roof. If your kidney is not functioning properly, you will get into blood pressure. Yes or no? If your metabolism is not happening properly, you will get into blood pressure. That is the largest category. आपका अपच हो जाएगा, पाचन नहीं होगा तो भी blood pressure हो जाएगा. Now, I am trying to make you understand what is blood pressure in a very, very simple way. If you just be with me for some time, हाँ? अगर आप मेरे साथ में थोड़ा समय focused रहें तो आपको पता चलना चाहिए. तो हमारा प्रयास यही है, we want that you understand the problem. And then we will tell you about the solution. तो blood pressure क्यों हो रहा है आपको तो मालूम नहीं. Most of the people are getting into metabolic issue, yes or no? अगर if you get into dehydration, will you get your blood pressure will rise, or you will get palpitation, heart beat तेज हो जाएगा आपको अगर आप डिहाइड्रेट हो जाते हो. तो आप जब एंटीबायोटिक लेते हैं तो क्या आपका डिहाइड्रेशन होता? When you take something like ACE inhibitor, losartan potassium, Losartan, Tozar, Coens, Repace, ऐसा कोई दवाई लेते हैं, Telmisartan, Telma, तो आपके शरीर से पानी निकाल देता है. ब्लड प्रेशर तो कम दिखेगा, हार्ट के ऊपर लोड आ जाएगा. तो आप हार्ट अटैक क्रिएट कर रहे हो या फिर हटाने की कोशिश कर रहे हैं? तो ब्लड प्रेशर की गोली लोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा. Heart attack has become number 1 cause of death, yes or no? So risk. कोई भी blood pressure is a protective mechanism. By increasing the pressure inside, detox will happen, yes or no? Metabolism will happen. Food will convert into something else because of some pressure. If your liver is not able to convert or you lost the strength of metabolism, तो आपका blood pressure बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? The body will protect itself or not? आप वो कम करके you don't want the body to protect itself. If your kidney is damaged for whatever reason, so let us know what is the risk which is creating this problem. Risk समझे? Risk को समझते हैं? अच्छा, your disease, if you go on a difficult terrain, अगर मुश्किल जगह पे चले जाएं तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी कम हो जाएगी? In a difficult environment, higher up places में चले जाओ, ऑक्सीजन लेवल कम है, क्या होगा? सांस भी नहीं लिया जाएगा. Your heart will not be able to function properly, yes or no? But
आप नीचे रहते हुए अगर एनवायरमेंट को डिफिकल्ट बना दे तब किसकी गलती होगी? So your environment has changed in the last 50 years or not? Who has changed it? You have changed it, we have changed it. हमने एनवायरमेंट बदल दिया। तो अब बताओ, अब शरीर के लिए रिस्क आ गया। मिटिगेटिंग, रिस्क मिटिगेटिंग मैकेनिज्म, ब्लड प्रेशर इज रिस्क मिटिगेटिंग मैकेनिज्म। जब आपके सामने शेर आएगा तो क्या करोगे? ईदर यू विल फाइट और यू विल फ्लाइट, रन अवे, यस और नो? उसके लिए चाहिए क्या? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बगैर आप काम नहीं कर सकते। इफ योर ब्लड प्रेशर गोज डाउन यू विल नॉट बी एबल टू होल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, यस और नो? तो अब आपके अंदर तो आपने रिस्क क्रिएट कर रहे हो, मगर आप चाहते हो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। एनवायरमेंटल रिस्क, यू आर पुटिंग इन अ पिल इनसाइड फ्रॉम चाइल्डहुड। जब एक इन्फेंट था कितनी केमिकल बॉम्बिंग किया उसको हमने। भाई हिटलर तो कुछ लाख लोगों को केमिकल बॉम्बिंग कर रहा था। मॉडर्न एलोपैथी कितने लोगों को केमिकल बॉम्बिंग कर रहा है? कितने बिलियन लोग हैं दुनिया में? आप लोग ड्रग एडिक्ट हो कि नहीं हो ये बता लो, बताओ पहले। आप लोग ड्रग एडिक्ट हो कि नहीं हो, पहले ये क्लियर कर लो। ऑलमोस्ट एवरीवन नहीं, एवरीवन। एनवायरमेंटल इंपैक्ट विल गेट इन एवरीवन। एवरीवन इज टेकिंग मेडिसिन इन सम वे और द अदर, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में इम्यूनाइजेशन के नाम पे, पोलियो ड्रॉप के नाम पे हो, चाहे किसी नाम पे हो। आपको केमिकल बॉम्बिंग तो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? तो इज इट अ रिस्क और नॉट? अगर आप केमिकल के लिए डिजाइन होते तो पेड़ों पे लगे होते ना वो आपके सारे एम्लोडिपिन, एटिनोलॉल और वॉट एवर यू टेक। हाँ, पेड़ों पे लगे होने चाहिए थे ना वो दवाई, अगर आप डिजाइन होते तो। यू आर नॉट डिजाइन फॉर मेडिसिन। तो ऐसा करो, टुमारो गो टू अ पेट्रोल स्टेशन और अपनी पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डलवा लो। विल यू डू दिस? क्या आप करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? करना चाहिए आपको। नहीं, कॉमन सेंस। हाउ कैन वी पुट डीजल इन पेट्रोल व्हीकल? मगर आप तो यही काम कर रहे हो दिन रात अपने साथ में, बॉडी के साथ में। वेयर डज द कॉमन सेंस गो हियर? फ्रॉम यहां पे यूज करने, बॉडी को यूज करने में कॉमन सेंस कहां जाता है? इट्स अ केमिकल बॉम्बिंग। और आपका लिवर इफेक्ट होगा, आपका लिवर इफेक्ट होगा ना। अगर केमिकल बॉडी पे डालोगे तो क्या होगा? खरोंच लोगे तो क्या होगा? जलन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन समझ रहे हैं? तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द वोकैबुलरी दैट एलोपैथी यूजेस। प्लीज अंडरस्टैंड दोस वोकैबुलरी। वो किसी का नाम लेने से ठीक नहीं हो जाता, कोई डायग्नोसिस कराने से ठीक नहीं हो जाता। एमआरआई करा के कौन ठीक हो गया आज तक? इतने बड़े नाम टैग कर दिया गया आपके सामने, आप ठीक हो गए? आपको तो साफ बोलते हैं आपको ये प्रॉब्लम है, हम ठीक नहीं कर सकते, फिर भी ये दवाई लेनी पड़ेगी, आप फिर भी दवाई लेते हो। क्या कमाल की बात है। So every chemical that you put in your body is a chemical bomb, is a risk for your body. लिवर को जलन हो रही है तो क्या करेगा? आपको जलन हो रही है तो क्या करोगे? थोड़ा घी लगाओगे तो जलन कम हो जाएगा, यस और नो? यस और नो? थोड़ा घी लगाओ जलन कम हो जाएगा। तो लिवर भी थोड़ा घी लगाता है अपने ऊपर, उसको क्या कहते हैं? फैटी लिवर। हम कहते हैं नो, ये अच्छा नहीं किया लिवर ने। अरे आप बचने ही नहीं दोगे अपने बॉडी को। जब ये कोरोना को मारने के लिए फीवर क्रिएट करता है तो आप क्या करते हैं? फीवर को कम कर देते हो। अरे व्हाई हैव यू मेड योर बॉडी इनटू अ क्रिमिनल? कोई भी वेग, कोई भी फ्लो जब आप बॉडी में रोकते हैं, उल्टी होती है तो रोकते हैं कि नहीं? एक छोटा सा बच्चा 2 महीने का उल्टी कर रहा है, आप उसके मुंह के अंदर ऑन्डेनसेट्रॉन का सिरप डाल देते हो, उल्टी नहीं होने देंगे आप। यू विल नॉट अलाउ लूज मोशन टू हैपन। डिटॉक्स आप अपने बॉडी में होने नहीं देंगे। अब बॉडी करेगा कि नहीं डिटॉक्स? प्रेशर बढ़ाएगा वो, अब वो भी नहीं होने देंगे। क्या कमाल, क्या इंसानी सोच है, सोचिए। इसी को हम इंटेलिजेंट कहते हैं। दुनिया की हिस्ट्री में, इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, वेस्टर्न वर्ल्ड हैज बीन द मोस्ट डम्बेस्ट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे बेवकूफ प्रजाति की बातें मान रहे हैं और उसके भी गुलाम बन रहे हैं, उसके भी गुलामों के भी गुलाम। क्या कमाल की बात है। तो अब ब्लड प्रेशर होगा, व्हाट इज इट? लिवर, फैटी लिवर हो रहा है,
नाउ यू आर इनटू रिस्क, यू आर ईटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, भोजन अच्छा कर रहे हैं सब, बहुत अच्छा खा रहे हैं, मगर जेनेटिकली मॉडिफाइड है, नॉट योर फूड. लिवर इज योर सेकेंड ब्रेन, इट अंडरस्टैंड्स इफ दिस इज योर फूड और नॉट. वो गेट कीपर है, चेक करता है. आपको 500 मिलीग्राम की गोली दी जाती है ना, आपको मालूम है आपके बॉडी को कितना चाहिए होता है? 5 मिलीग्राम. 500 क्यों दिया जाता है? बिकॉज देन 5 मिलीग्राम विल बाईपास लिवर मैकेनिज्म, फर्स्ट बाईपास कर जाएगा. धोखा दे दिया आपने अपने शरीर को. कितना दिन जिएंगे धोखा देके, ये बता दीजिए ना. धोखेबाज लोगों के चक्करों में रहोगे तो यही होगा. देखो उनकी इकोनॉमी अब खत्म हो रही है क्योंकि धोखा दिया, धोखा देके सब काम करते हैं. So when the dosage of your medicine is titrated, it is titrated in such a manner that it bypasses the liver का जो first bypass mechanism, जो liver का checking mechanism है ना, उसको bypass कर देता है. और या तो आपको IV, IM इंजेक्शन दे देंगे. आप धोखा देके शरीर के साथ में कब तक आप इसको हेल्दी रख पाएंगे? Now metabolism is not happening properly. यानी आप जो फूड को कन्वर्जन में नहीं हो रहा, you need 6 different strengths of your body to do proper metabolism. 6 आपके different kinds of tissues are produced. रस, रक्त, रस से रक्त 7 tissues हो गए, 6 प्रोडक्शन हो गया. So रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 different kinds of tissues, 6 different factors or metabolic factors needed for it. देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस. अब अपने दादा दादी को याद कीजिए, दादा दादी को याद कीजिए. ठीक है, वो फिजिकली ज्यादा सक्षम थे. वर दे मोर फिजिकली केपेबल और आर यू मोर फिजिकली केपेबल? आपकी ये 6 शक्ति कम हो चुकी है. That means metabolism at 6 different levels has come down drastically, almost 80%. अच्छा मुझे बताइए, infertility increasing, decreasing? Increasing, बढ़ रही है infertility, घर घर की बात हो चुकी है. And what is the reason? sperm count नहीं है साहब, sperm mortality नहीं है, sperm morphology ठीक नहीं है, स्पर्म मोर्टेलिटी ज्यादा हो रहा है. ओवम ठीक नहीं है, प्रॉपर ओवम मिल ही नहीं रहे. पीसीओडी हो गया जी, एंडोमेट्रियम ब्लॉक है. स्पर्म बनेगा कैसे? बनने तक का मेटाबॉलिज्म जान चाहिए कि नहीं आपके अंदर? भाई 6 लेवल ऑफ फैक्टर्स और फोर्सेस नीडेड. 6 बल चाहिए आपको, तब जाके मेटाबॉलिज्म होगा, तब जाके शुक्राणु बनेंगे. लास्ट मैक्सिमम एनर्जी नीडेड. इंडियन कल्चर में आपने सुना है ना, शुक्राणु वेस्ट मत करो, मैक्सिमम एनर्जी इज नीडेड. बट आपके अंदर तो जान नहीं है. जस्ट रिमेंबर योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर. पहले लेडीज 2-2 मटके सिर पे, 3-3, उससे भी ज्यादा लेके चल देते थे. आज चलोगे तो वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाए. तो रिस्क आप बढ़ाए जा रहे हैं, रिस्क आप बढ़ाए जा रहे हैं. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल मानेंगे आप? वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, बट मेजरली कौन रिस्पॉन्सिबल है? गोरे रिस्पॉन्सिबल है, फिरंगी रिस्पॉन्सिबल है. उनसे आप पूछते ही नहीं हो. सबसे बेवकूफ प्रजाति, हम उनसे पूछने से भी डरते हैं. तो वो हमसे साइंस चुरा के ले गए साहब, वो साइंस चुरा के ले गए. आपको मालूम है ना, चुराई हुई चीज ज्यादा दिन हजम नहीं होती, और उसी को उन्होंने इतना डिस्ट्रक्टिव बनाता है. साइंस इज आर गिफ्ट टू द वर्ल्ड. तो अब आते हैं बात, अगर रिस्क बढ़ाएंगे तो आपका बॉडी बचाएगा अपने आप को. बचाने का ही एक पक्ष है एड्रिनल ओवर एक्टिविटी. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो रहा है आजकल ज्यादा. एड्रिनल ओवर एक्टिविटी, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी में क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड शुगर बढ़ता है, डायबिटीज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो आपका शरीर तो आपको बचाने के चक्कर में लगा हुआ, उसको आप खतरा बोल रहे हो. प्लीज अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग, ओवर दैट यू कैन वर्क. पर ये बेसिक चीज तो समझो कि आपके अंदर
सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता कमजोर हो गई है. You are not able to handle a situation within your body. That is why body is doing all the emergency activity so that it can function somehow. अब मुझे बताइए, what is your reason for that, for blood pressure? अभी भी नहीं पता चलेगा आपको, बिकॉज ये पता किया ही नहीं जाता. बट एक चीज आपको बताता हूं, इफ यू इंक्रीज दिस षड बल, 6 स्ट्रेंथ्स को अगर आप बढ़ा दें तो आप बच जाएंगे साहब. नहीं तो एक बात मैं कह रहा हूं, नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इज हार्ट अटैक. इट विल ग्रो लाइक एन एपिडेमिक इन द कमिंग 10 years. वॉच इट. 35 साल के 40 साल के जवान लड़के बिना बीमारी के हार्ट अटैक से मरेंगे. सो हु विल प्रोटेक्ट यू? कौन बचाएगा आपको? आपका ही स्ट्रेंथ बचा लेगा, वरना कोई नहीं बचा सकता. तो आप स्ट्रेंथ कैसे क्रिएट करते हैं साहब? अब ये यहां पे बात लेके आता है, सोल्यूशन तो चाहिए ना अपने को. आप स्ट्रेंथ कैसे क्रिएट करते हैं? हैव आई गिवन द एग्जांपल इन द वेबिनार? मैंने दिया एग्जांपल. आप वो वेट कैसे उठाते हैं? हाउ डू यू लिफ्ट वेट? हाउ डू यू पुल समबडी? सांस रोक के, होल्ड इट, खींच के रोको. देखो पीछे सांस रोका कि नहीं रोका आपने? सो व्हेन योर बॉडी इज डूइंग ऑल द इमरजेंसी थिंग्स, दैट मींस योर स्ट्रेंथ हैज गॉन डाउन. यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, योर बॉडी विल नॉट हैव टू डू इमरजेंसी थिंग्स. कौन सा इंसान है, अगर इंसान रेजिलेंट होता है ना, ऐसे भी तो इंसान, ऐसे भी लोग हैं जो बीमार नहीं पड़ रहे, जिनको ब्लड प्रेशर नहीं हो रहा, क्योंकि देयर रेजिलियंस इज मोर. उनकी डिविएशन को झेलने की क्षमता ज्यादा है. एवरीथिंग इज डिविएटिंग यू, यस और नो? एनवायरमेंटल इज डिविएटिंग यू. अब एक काम करो ना, एक्सपेरिमेंट करो. आप खड़े हो जाएं, किसी और इंसान को बोलें कि आपको धक्का दे, तो दिस इज लाइक डिविएटिंग फोर्स. आपका भोजन भी डिविएटिंग फोर्स है, मेडिसिन भी है, एनवायरमेंट भी है, सोशल सिस्टम भी है, एजुकेशनल सिस्टम भी है, इकोनॉमिक सिस्टम भी है. अब आप उस गिरने से कैसे बचेंगे बताइए? क्या करेंगे कि आप फिर भी खड़े रहें? आप सांस रोक लेंगे साहब, नहीं तो एक्सपेरिमेंट करके देखो. एक टांग पे खड़े हो जाइए. हाउ डू यू बैलेंस योरसेल्फ? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. तो अगर आपकी रेजिलेंस कम हो गई है, अगर आपकी 6 बल कम हो गए हैं, उनको बढ़ाने के लिए आपका ही स्ट्रेंथ क्रिएटिंग मैकेनिज्म को इस्तेमाल करना पड़ेगा. बाहर से कुछ इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान कर देंगे. सो दिस इज योर स्ट्रेंथ क्रिएटिंग मैकेनिज्म, जिसको हम कुंभक बोल रहे हैं, और इसको डिजाइन कर रहे हैं डायग्नोस करके कि आपका वीकर पॉइंट कौन सा, वीक पॉइंट कौन सा, वहां इस तरफ में डायरेक्ट कर दें हम उसको. What you will see is, if you are doing kumbhak, whatever you do, you will not get into emergency or a crash situation. That is guaranteed. क्योंकि आपका स्ट्रेंथ ही आपको बचाएगा अल्टीमेटली. So kumbhak is used to build in those 6 levels of strength. Not only that, your heart functions on something called as Dakshinagni. Blood pressure happens because of Vyana factor of your body. If you prepare yourself to be able to relax in a difficult situation, then you will come out of it permanently. फिर आपकी शक्ति अगर होगी तो बॉडी को ये इमरजेंसी ब्लड प्रेशर बढ़ा के अपने आप को नहीं बचाना होगा. So first of all, please understand that blood pressure is your protective mechanism, but your body is activating it because you are weak, so it wants to protect you. उसको नीचे करेंगे तो you will go towards degradation. आप अपनी लाइफ को देख लीजिए, दवाई खा के किसी की लाइफ आज तक अच्छी नहीं हुई. And multiple issues are in the process of coming. आप आज सोच रहे हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर ठीक है, आई एम फाइन, पर वो ठीक करने के चक्कर में आप क्या डैमेज कर रहे हैं आपको पता नहीं. नेक्स्ट डे यू लैंड अप इन अ हॉस्पिटल. हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी?
बता दीजिए, आपका डॉक्टर लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, बचपन से जिसने दवाई दी आपको? आपकी सरकार लेगी, हॉस्पिटल लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, WHO लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अमेरिका लेगा जिसके आप गुलाम हैं, जिसको आप पैसा देते हैं हथियार बनाने के लिए और चौधरीगिरी करता है दुनिया में। आप जब एक दवाई खाते हो तो इसका पैसा जाता है अमेरिका को, और वो फिर किसी देश पे हमला करने की तैयारी करता है, वो आपके ऊपर ही हमला करता है। अभी आपकी सरकार बदलने के लिए पैसा डाल देगा कि हमारे को अपना गुलाम चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, आपको सोचना पड़ेगा। यू विल हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग सोल्यूशन, यू आर नॉट गेटिंग सोल्यूशन, दैट इज द ट्रूथ। आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, कम से कम अपने आप को संभाल लीजिए। प्लीज गेट योरसेल्फ टू अ स्टेट वेयर यू डोंट गेट इनटू क्रैश एटलीस्ट। ऐसा नहीं हो कि कल को आपको हॉस्पिटल में लैंड करना पड़े। फॉर दैट इट इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड दैट यू स्ट्रेंथन योर सिस्टम थ्रू कुंभक। बाहर से कोई सपोर्ट भी लेना है तो गो टुवर्ड्स नेचुरल सपोर्ट, बट बाहर से जो भी लेंगे इट विल बी अ सपोर्ट, इट विल नॉट रिकवर यू, रिवर्स यू, है ना। बैसाखी लेके अगर आप सपोर्ट लेते हैं तो पांव मजबूत नहीं होते उससे, ये बात आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना। Sorry, Swamiji, there I'm taking a few common questions about CKD, atrial fibrillation, protein buildup in tissues, okay, and blockages, because we have people who have benefited in atrial fibrillation as well as CKD, but people want to know when it comes to things like blockages, weak valve, atrial fibrillation, how does this therapy work? What is atrial fibrillation? आपने ये शब्द तो सुन लिए, क्योंकि फिरंगी जो है ना वो नामकरण संस्कार में बड़े तेज है। वो कहीं जाएंगे ना अपना झंडा लगा देते, हमने तो डिस्कवर किया। वो इंडिया को भी डिस्कवर किया उन्होंने, मालूम है आपको? उससे पहले तो कोई था ही नहीं यहाँ पे। मतलब निरा बेवकूफी वाली बात है, मगर क्या करें, अब इसी चक्कर में सभी फंसे हुए। एट्रियल फिब्रिलेशन होता क्या, आप अपनी समझ से लेके आइए ना। प्लीज अंडरस्टैंड इन योर अंडरस्टैंडिंग, इन योर ओन, विथ योर ओन अंडरस्टैंडिंग। आप अपनी समझ से समझिए। कोई चीज कांपती कब है? कांप रही है ना। फिब्रिलेशन मींस व्हाट? कांप रहा है ना। आप ग्लास उठाएं और आपका हाथ कांपे, इसका मतलब क्या बोलेंगे? पहली चीज क्या बोलेंगे उस इंसान को? अरे आप इतना वीक हो गए। यस और नो? आप यही बोलेंगे ना। आप जब बीमार हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो पांव खड़े होते हैं तो पांव कांपते हैं। फिब्रिलेशन हो रहा है ना आपको। तो प्लीज अंडरस्टैंड, फिब्रिलेशन मींस व्हाट? आपका हार्ट में जान नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर, उसमें प्रेशर नहीं बन पा रहा। अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को देखेंगे ना, आपका बॉडी बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर हार्ट के अंदर प्रेशर होगा तो फिब्रिलेशन नहीं होगा। तो लो ब्लड प्रेशर देखेंगे उस समय अपना, क्या देखेंगे? लो बीपी। अब लो बीपी में तो काम कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो आपके वाल्व्स काम कर पाएंगे? आप डॉक्टर के पास चले जाओ, बोलो कि डॉक्टर बोलेगा एट्रियल फिब्रिलेशन, ऐसा हुआ क्रिएट किया हुआ, आपको लगेगा पता नहीं अब तो मेरा हार्ट अटैक ही होने वाला है। फिर कहेगा तो एक ही चांस है जी आपका, वाल्व रिप्लेसमेंट। हाँ, हार्ट खराब हो रहा है, हार्ट रिप्लेसमेंट, किडनी खराब हो रही है, किडनी रिप्लेसमेंट, लिवर खराब हो रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट। मतलब कोई चीज तो ठीक कर ही नहीं सकते, तभी तो रिप्लेस कर रहे हैं। अगर ठीक कर पाते तो रिप्लेस करने की जरूरत क्यों होती? तो ये ठीक कुछ भी नहीं कर सकते। पहली बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि दवाई से ठीक होता ही नहीं। केमिकल दवाई से ठीक होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो अभी आपको क्या करना है? हम आपको कुछ इमरजेंसी चीजें भी बताएंगे। लेटर ऑन विल स्टार्ट दिस इमरजेंसी थिंग कि अगर आपको सडनली है तो इमीडिएटली ठीक हो जाएगा, इमीडिएटली ठीक हो जाएगा, ऐसा भी कुछ बता। बट इमरजेंसी या अर्जेंट ट्रीटमेंट इज नॉट ए थेरेपी। वो आपको ठीक नहीं करेगा, स्ट्रेंथ नहीं करेगा, आपकी हार्ट की स्ट्रेंथ बिल्डअप नहीं कर पाएगा। वो तो कुंभक ही करेगा, वो तो आपको अपने लाइफस्टाइल में डालना पड़ेगा। सो संस्कार सबसे बड़ी चीज है। अगर आप हार्ट डिजीज से निकलना चाहते हो, यू विल हैव टू क्रिएट अ संस्कार, हाउ टू हैंडल दिस बॉडी। यू हैव नॉट क्रिएट, आपने तो संस्कार छोड़ दिया, आप तो सिविलाइजेशन पे आ गए। सिविलाइजेशन दिखावटी चीज है, संस्कार
इनबिल्ट चीज है, क्रिएटिंग और बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ए संस्कार। एटिकेट्स आर दिखावटी चीज, आप सामने अच्छे से स्माइल करके दिखाते हो तो हार्ट अटैक तो आएगा ही जी। आप धोखा दे रहे हो लोगों को, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसे खाना, ऐसा बैठना, ऐसे कपड़े पहनने, बस हो गया सारा काम। ये सिविलाइजेशन की वजह से हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज हो रही। इसको संस्कार में यू विल हैव टू बिल्ड द सॉफ्टवेयर, और वो रेगुलर, इसीलिए कुंभक करना जो है वो बहुत जरूरी है हार्ट का स्ट्रेंथ अगर बिल्डअप करेंगे। लेकिन एक बात कहता हूं, जिसको भी एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा, और एट्रियल फिब्रिलेशन में आप शायद ज्यादा घबरा जाए, तो अगर लो बीपी हो रहा है दैट मींस योर, आपके हाथ पांव छूट रहे हैं, उस समय क्या कीजिए, सांस को रोकना शुरू कर दीजिए थोड़ा थोड़ा। विद इन 15 मिनट्स यू विल सी योर ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर विल कम टू नॉर्मल। मगर अगर ऐसा आपने कर लिया, या आप कुंभक कर रहे हैं तो आपका लो बीपी होगा ही नहीं, ऐसा कर लिया आपने, तो फिर वो इमरजेंसी वार्ड कैसे चलेगा? So we are going to start a program where we'll train people to do emergency treatment just by themselves. अगर हार्ट अटैक आया, आपका शरीर ने बचा लेना है ना, तो बचा लेगा, नहीं तो 4 मिनट से भी कम देगा आपको। तो आप जब हॉस्पिटल पहुंचते हो, जब बोलते ना आप सही टाइम पे हॉस्पिटल आ गए, तो नहीं साहब, आपके शरीर ने बचा लिया। डू यू नो ब्लॉकेजेस की वजह से हार्ट अटैक नहीं होता? क्या आप जानते हैं इस बात को? ब्लॉकेजेस की वजह से कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता। कहते हैं 95% ब्लॉक हो गया, वो जी आओ एंजियोप्लास्टी करवाओ। तो एक हफ्ता पहले 95% ब्लॉक नहीं था आपको, एक दिन पहले नहीं था, एक हफ्ता पहले नहीं था, 2 महीने पहले भी 95% ब्लॉक था आपको, 2 साल पहले भी 85% ब्लॉक था आपको। साहब 10 साल लगे हैं 95% तक आने में। तो हार्ट अटैक 95% तो 3 महीने से था, 6 महीने से था, तो हार्ट अटैक क्यों नहीं आया? ब्लॉकेज से हार्ट अटैक नहीं होता, ब्लड क्लॉट से होता है हार्ट अटैक। और ज्यादा ब्लॉकेजेस रिस्क नहीं होते हैं, कम ब्लॉकेजेस रिस्क हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि होते हैं, हो सकते हैं, बट हायर ब्लॉकेजेस आर नॉट अ रिस्क एट ऑल, क्योंकि आपके हार्ट ने इमरजेंसी काम कोलैटरल खोल दिया होगा। लेकिन बॉडी में कट डालोगे तो कोलैटरल बंद हो जाएगा, यानी आपने फिर इस बॉडी को वो काम नहीं करने दिया जो ये कर लेता, सिर्फ केवल इस वजह से क्योंकि आपका नैरेटिव कुछ बिल्ड कर दिया गया है। आप डर जाते हैं, आपको डरा दिया गया है, आप कुछ भी सोचने लग जाते हैं। हार्ट की तरफ में लगातार पेन होता है तो वो रिस्क नहीं होता है, मगर जब भी पेन होगा तो आप पहुंच जाओगे हॉस्पिटल। लगातार पेन है आपके लेफ्ट साइड में तो वो रिस्क नहीं है, वो हार्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है, इंटरमिटेंट में लेना देना होता है। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है। दूसरी बात, कितना भी जान लीजिए, गूगल को अपने दिमाग में घुसा लीजिए, फिर भी हेल्दी नहीं होंगे, गारंटी, स्टैम्प पेपर पर लिख के दे रहा हूं। इफ यू वर्क अपॉन योर बॉडी, योर लाइफ विल बिकम ब्यूटिफुल। ये शरीर ही आपको बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता इस वक्त में। इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ बेटर, तो प्लीज कल्चर योर बॉडी, डू कुंभक on a regular basis, you will be away from any kind of a crush. Prasanna ji, we have answered your question about heart blockages and your fear that they have recommended surgery. So I hope you should be clear about it. That has been answered. If you still have a question, you can ask it by unmuting yourself. Then, because I want to address something about CKD, and then after that we'll close the webinar. If you want to ask your question, please ask your question. Namaste, Guruji. Namaste ji. Yeah, I'm calling from Bangalore. Okay. Yeah, I just got a link from this social media in Facebook. Mm-hmm. So I saw this YouTube videos and all in about Kumbhak and your videos and all. So I was so happy to listening your these videos
about this heart blockage and other diseases and all to do reverse concept. What is your question? Yeah, my question. Yeah, just I wanted to tell. Not just give me a chance to tell. And the thing is, I was checking in the Google like to about heart blockages to do reverse and all, but there is no answer for heart blockages. Everyone they're telling only to take ecosprin tablets, or if it is more than 70% stunt, they will advise. There is no way to reverse it in terms of what the allopathic sciences looks at heart block. Yeah. So my question is, recently, 1 week ago, I started getting my chest pain early in the morning around 6:30. It was the pain was more than 1.5 hours. So I went to hospital to do ECG, and after that they told me to do echo. After that they told me to do TMT. So ECG and echo it was normal. In TMT, that V5 and V6, it was showing that in borderline, started. That You blockages don't have started. any problem. TMT is not a test to actually detect any kind of a heart disorder. TMT is not recognized for that. All right. First of all, understand it. It is just indigestion, please. It is just a little indigestion in you. If it is in Ayurveda, it is called as Amavata. It is called as Amavata. If you take any digestive like Frikatu. Yeah, they're asking me to do this. Now you have got into the trap of that. They'll do something else. They'll do something else until they find out what they create. They're told asking me to do angio test and CT angio and all. So I don't want to do all those things. Just I wanted to do. Just do Kumbhak and you'll see it will go away. One more thing, if you are doing Kumbhak, every human body, every human being gets into a heart attack situation multiple times in their life. If you are doing Kumbhak, you will get a milder heart attack that will make your heart much stronger, but you won't even get to know that it's a heart attack. So I have given your answer. It is not a problem at this moment. If you increase the fear factor within yourself, then what can be done? We can't do anything. Prashant Sharma. Quickly, last question. Prashant ji. प्रशांत शर्मा, बोलिए। Yes, sir. आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। Yes, am I audible? Yes, you are audible. बोलिए। Yes, Guruji, good evening. Good evening. Guruji, I'm a 29 years old boy. Okay. And I'm suffering from continuously low BP these days. See, low BP. Just let me complete. Just wanted to add actually. Actually, I have been diagnosed with brain edema, brain tumor. In 2016, like 6 years ago. Since then, I have been taking medication and medicine and doing yoga as well as. But recently, I have changed some medicine, and also due to some changes of lifestyle, because I went outside for some visit and all, and I've been facing continuously low BP issue, and it is like giving me so much stress and losing the immunity of the body as well as. So should I tell you why it is happening? बता दूं, इसका solution भी बता दूं. So if your body, everything in your body flows, yes or no? आपके body के अंदर हर चीज flow करती है ना एक तरीके से. Yes, true. है ना, material flow, hormone flow, blood flow, juices flow, liquid flow, सब flow है ना. If you block a flow, तो क्या होगा?
जो फ्लो है वहां पे अटक जाएगा. इफ अ ब्लॉक क्रिएट, वहां पे अटक जाएगा, है ना. तो वो फ्लो तो आगे नहीं जा पाएगा ना. इट विल नॉट गो अहेड, इट विल जस्ट बी देयर अनलेस एंड अनटिल यू क्रिएट सम काइंड ऑफ अ प्रेशर टू पुश इट. तो वो फ्लो जब एक ही जगह पे अटक जाता है तो एवरीथिंग देयर स्टार्ट्स एग्रीगेटिंग, इकट्ठा होना शुरू होता है. इट इज कॉल्ड एज गुल्म इन आयुर्वेद. इसको गुल्म कहते हैं. गोल हो गया, वायु गोल हो गई, डायनामिज्म गोल हो गया, सो ट्यूमर बन जाएगा वहां पे. ठीक है. नाउ अभी तो बोला है कि ट्यूमर ही है सिर्फ, ये कैंसरस नहीं है. मगर अगर आप इसको वापस चलन नहीं करेंगे, उसका मूवमेंट नहीं करेंगे, तो इट विल बिकम कैंसरस. ठीक है. इतना सिंपल है ना समझने में, सो सिंपल. योर ब्लड प्रेशर ऑल्सो एलिवेट्स, और इफ यू आर नॉट एबल टू एलिवेट ब्लड प्रेशर इन द हार्ट, तो हार्ट को ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा. आप पानी डालते हो, पेड़ों में पानी डालते हो, प्रेशर नहीं आता, तो क्या करते हैं, ब्लॉक क्रिएट करते हैं ना, एंड द प्रेशर इंक्रीजेस. सो ब्लॉकेजेस आर ऑल्सो अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ योर हार्ट. गुल्म क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ फ्लो विच हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड, समवेयर रेस्ट्रिक्टेड. तो फ्लो को चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा. सुबह पॉटी नहीं आती है तो क्या करते हो, जोर लगाते हैं, कुंभक करते हो. इस वक्त में आप कुंभक कंपलसरी होना चाहिए पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, बिकॉज आवर बॉडी इज नॉट इन द स्टेट वेयर इट कैन सर्वाइव ऑन इट्स ओन. तो इस वक्त जरूरी है यू डू कुंभक, बिकॉज देर इज अ मास समवेयर. मास को डिसॉल्व होने में टाइम लगता है. और मैं ये बात अगर आपसे बोलूं, अंदर तो ऐसे छोटे मोटे गांठें होती ही रहती हैं. इफ इट डजंट बिकम कैंसरस, दैट इज व्हाट वी वांट ना. तो कम से कम इतना तो कर लो कि इट डजंट गो टुवर्ड्स. अभी मोमेंटम कितना हमें मालूम नहीं ना, डिजीज का आपके अंदर, किसी के अंदर मोमेंटम कितना है, बट इट इज ट्राई, स्टार्ट रिवर्सिंग इट. 100 किलोमीटर भी चलना है, एक कदम तो लेना ही पड़ेगा. तो यू विल सी योर लाइफ विल इंप्रूव टुवर्ड्स 29 इयर्स. अभी तो लाइफ शुरू भी नहीं हुआ, तो अभी से शुरू करो. डू कुंभक, मेक योर लाइफ. यूल सी कि अभी तो कुछ भी काम नहीं कर पाओगे. व्हाट विल यू डू इन योर लाइफ. योर लाइफ विल बिकम लाइक अ बोझ. तो अगर कुंभक करना शुरू करेंगे, यूल सी दैट योर एफिशिएंसी, योर फंक्शनैलिटी विल इंप्रूव अ लॉट. आपका ये लो बीपी तो बिल्कुल ही चला जाएगा, इमीडिएटली चला जाएगा. ज्यादा चांसेस हैं कि वो गुल्म, अगर हम उसको ठीक कर दें तो आगे कोई नुकसान नहीं करेगा आपको. उसका जो नुकसान है उसको हम रोक सकते हैं. Okay, see, this question and answer cannot continue, because if we do this, it'll continue for the 1 week. So if you are scared of something, we don't have an answer for that. But overall, somebody is asking bradycardia, tachycardia, heart blockages, some left ventricle is weak, this or that has been told to you. And you wish to avoid surgery, so on and so on. So you have to work upon yourself. So somebody is put in the chat box, can I leave my medicine for after stents have been put on? Yes, you can. I am one person who has been able to leave his medicines for blood pressure, for diabetes, and क्या वो दीवार पिक्चर का फेमस डायलॉग है ना, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तो लोग बोलते हैं मेरे पास स्टेंट है, तो मैं भी बोलता हूँ मेरे पास भी 2 हैं. Okay, but after doing Kumbhak, I have been able to live without these medicines, and it's been a year and a half, and I'm perfectly fine. Okay, so that should answer questions about bradycardia, tachycardia, heart blockages. Essentially understand कि आपका दक्षिण आग्नेय फैक्टर वीक हो गया है. Blockages is not a problem. हार्ट की कोलेट्रल अगर बनाने की क्षमता कम है तो प्रॉब्लम है. Okay, तो with Kumbhak you are working upon that. If your rhythm is disturbed,
with Kumbhak you will be able to re-establish it. Bradycardia means अगर आपका कम हो जाता है तो आप उसको फिर से कर सकते हैं. किसी का लो ब्लड प्रेशर है तो उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं. सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा. If somebody wishes to talk to me personally, my number is 9811235951. Okay, somebody who wishes to talk to Guruji, Swamiji, then you can speak to me. Whatever I'll tell you are going to be his words. Okay, so yes, somebody will call you. Those who have left their numbers, people still watching us here as well as on YouTube, please leave your number so that team can reach out to you. Now, there are many questions. Will Kumbhak help in this? IBS? Yes. Will it help me build stamina? Yes. There have been people in our cancer programs who had to stop running. They are running marathon again. Okay. They are playing tennis again. Okay. So all these things will be taken care of. और इसको थोड़ा सा हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा कि हर चीज एलोपैथी की तरह नहीं होती है कि राइट हैंड का अलग डॉक्टर चाहिए, लेफ्ट हैंड का अलग डॉक्टर चाहिए. उनका बस चले तो 32 दांतों के डॉक्टर भी हो सकते हैं. ओके, तो आपका शरीर एक जैसा है, एक ही है, हर चीज इकट्ठी जुड़ी हुई है, काम करती है. ओके, क्वेश्चन सिर्फ आप ये आता है, क्या आप अपने ऊपर काम करने को तैयार हैं? वेरी सिंपल. मैंने किया, इसीलिए हम कुंभक कर रहे हैं. मेरी टीम में और भी लोग हैं, वो अलग अलग बीमारियों से बाहर आए हैं. दैट इंक्लूड्स ब्लड प्रेशर, वर्टिगो, thyroid, hypothyroidism, glaucoma, hypoglycemia, okay, seasonal allergies, somebody mentioned allergies and so forth. So people like us have done it, which is the reason, that is the reason why we are going ahead and offering it to people, and we are assisting Swamiji. One person cannot do it. Okay, so that is the reason why we are assisting him. We are coming from fantastic job, corporate backgrounds. Resume दिखाएंगे तो it's quite a flashy resume. Okay, but this is what is needed in the world right now. Okay, not what we were doing. The world does not need a better version of a mobile phone or a car or this or that. What it needs is a stronger, healthier version of the human beings who have been suffering knowingly or unknowingly, putting themselves in various conditions knowingly or unknowingly. But now is the time to take charge of your health and come out of this. Start working on your system. All right. So I'll repeat my number once again, 9811235951. You can speak to me directly also. All right. Though our team will also get in touch with you. So great. Thank you so much for joining in. Still 60 people here almost. So मैंने बोल दिया, अब एक ही सवाल है, आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं कि नहीं? क्या इस बीमारी से, इन कंडीशन से बाहर आना मुश्किल है? नहीं. क्या इससे बाहर आना आसान है? नहीं. ठीक है, अपने ऊपर काम करेंगे तो मुश्किल भी नहीं है और ना ही बहुत आसान है. जैसे कि एक दवाई ले ली तो जी छुट्टी होगी, नहीं. आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और इसके लिए समय लगेगा. That is for sure. So, which is why we are not promising anyone quick fixes. So, thank you so much. Thank you for your time, Swamiji, and also please share my number once again. And people who have made payments, our team will take care of you and guide you to join the class. Okay. So on that note, we will stop the session over here and we'll end it on a slightly higher note. Just give me a moment, please. मैंने ये जनवरी में ज्वाइन किया था, तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैं 7 मेडिसिन उस समय ले रहा था और मेरा बीपी मेडिसिन लेने के बाद भी 200, 210 ऊपर का और 110 नीचे जा रहा था. बहुत शॉर्टेज ऑफ ब्लड बहुत ज्यादा हो. तब मैंने फेसबुक में देखा ये कुंभक का प्रोग्राम सारा. तो मैंने पहले दिन मॉर्निंग स्ट्रेचेस किए तो मुझे लगा यार इसी से बड़ा फर्क पड़ा, शायद यही है. तो मैंने नवनीत जी को फोन किया. मैंने पूछा, यार नवनीत जी, ये जो सांस रोकना है ये रिस्की तो नहीं होता हाई बीपी के लिए? मैं कई लोग सुना है कि सांस नहीं रोकना चाहिए. इन्होंने बोला नहीं, आप करिए. मैंने डर के मारे एक बार फिर मैंने सोचा यार इतनी दवाइयां खा रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं, इतने बड़े काम करे, एक बार ये भी ले लिया. इसके बाद तो ये जो हुआ वो मैजिकल है. मैं आज की डेट में एक भी मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ. सिर्फ मैंने कुंभक करी और
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मैंने इसका इंटेक बढ़ाया जो इन्होंने बताया था, और ये सब ने मुझे ड्रग फ्री कर दिया, सबसे बड़ी बात है। और मैं कह रहा हूँ जिसको बीपी की दिक्कत थी, मेरे को बीपी की दिक्कत थी, अगर किसी को बीपी की दिक्कत है तो वो बिना किसी हिचके ये करे, आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, ये आपके सामने होता है। I am Apurvo Thakur from Asansol, West Bengal. I have joined BP batch number 14 in the month of February 2022. After 2 months of doing Kumbhak as instructed, I started quitting my medicines. I used to take 2 medicines per day. As of now, I am totally stopped taking medicine and my BP is under control within the range of 140/90. I am very much pleased, and I have already suggested my friends and relatives to who is suffering from heart and BP problem to join this program, and some of my friends has already joined in different programs. Myself Manjeet Singh, 67-year-old. Since I am doing Kumbhak and taking natural food as prescribed by Swami जी, मैंने अपनी दवाइयाँ छोड़ दी हैं लास्ट 2-2.5 महीने से। ना शुगर की दवाई, ना हार्ट की, ना कुछ भी नहीं, कोई दवाई नहीं ले रहा हूं मैं। आई एम फीलिंग फाइन with Kumbhak practice and natural food. Thanks, Team Astika. My name is अर्जुन कुमार अग्रवाल। मैं जो है करीब 15 साल से डायबिटिक और हाई बीपी का पेशेंट हूँ, और मैं योगा भी करता हूँ। 15 साल से मैं डायबिटिक का और बीपी का गोली ले रहा हूँ। उसके बाद 7 साल पहले मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हुआ था, 2 स्टंट डाले। उसके बाद 6 महीने पहले भी फिर हार्ट का सेकेंड टाइम प्रॉब्लम हुआ, जब भी 2 स्टंट डाले, 4 स्टंट लगे हैं मेरे को प्राणायाम और कुंभक के बारे में मालूम है, पहले से मालूम है। मैं प्राणायाम करता था, कुछ भी मैं किया नहीं हूँ कभी भी, ज़्यादा बहुत कम करता था। लेकिन ये कुंभक अस्तिका कुंभक क्लास में ज्वाइन होने के बाद डेली प्रैक्टिस करने से मेरे को जो है बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत बढ़ा है और भूख भी बढ़ गई है, और मेरा जो बीपी है 15 साल से वो अभी 3 महीने से एकदम नॉर्मल आ रहा है। मैं जो है 3 महीने से बीपी डॉक्टर को पूछ के टैबलेट्स बंद कर दिया हूँ, 3 महीने से नहीं ले रहा हूँ। और शुगर में भी मेरे को बहुत फ़र्क आया है। मेरा पहले जो है लेवल था उसमें करीब 40% कम हुआ है। मैं डॉक्टर ध्यान। So that's it. If you are still here watching, we will also share these things in the WhatsApp group, various testimonials about atrial fibrillation, about people who have left medicines for heart conditions, so on and so forth. So what time we can call Navneet ji? You can call Navneet ji after 10:30 tomorrow. Okay. If I don't answer the call, I'll return your call because I get a lot of calls, a lot of messages. So if I don't answer it immediately, I'll return the call. So thank you so much for joining in. I think Navneet ji, your number 9811235951. Okay. ये दोबारा से टाइप कर दीजिए जरा, कोई पहले भी लोगों ने शेयर किया है। So on this note, we will close the webinar. Wonderful to have been your host and the presenter 9811235951. WhatsApp group में पूछ लीजिए ना मेरे से सब, आप ये रिकॉर्डिंग YouTube पे भी है, पूरी दुनिया कॉल करेगी। Okay, that's okay. That is the nature of our program. तो कुंभक ने हमें ये सारी कॉल्स और ये क्वेश्चंस और ये सब हैंडल करना सिखा दिया है, okay? बिना कंप्लेन के। So thank you so much for joining in. Namaskar on behalf of Swami Raj Vibhu and my entire team at Astika Kumbhak. Namaskar.